چلیے تو ڈاکٹروں کی دوستی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ کا کیا تاتپریہ ہے؟ جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے وہ چاہے گا تبھی دوستی ہوگی۔ ہاں، انشاءاللہ کے معنی اللہ چاہے گا تو۔ جی اللہ چاہے گا تو، اللہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے۔ جی محبوب بھائی، اللہ جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ جو نہیں چاہے گا وہ کیسے ہوگا؟ تو ہم کو اس میں بالکل نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں اس کو سنیے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ پاکستان میں جو بھارت دوارا سینک اسٹرائک ہوا، اللہ چاہا؟ جی، بھارت کے سینکوں نے جو پاکستان میں اسٹرائک کیا، اللہ نے چاہا؟ اللہ تعالیٰ نے تقدیر پہلے سے لکھ رکھی ہے، قضا کو پہلے سے طے کر رکھا ہے۔ ایسا ہے، میں وہ نہیں پوچھا، میں جو پوچھا ہوں وہ بولیے۔ تقدیر لکھا کی تقدیر لکھا جاتا ہے، اللہ نے جو چاہا وہی ہوا، آپ بتا رہے ہیں نا؟ جی، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو یہ پاکستان بھارتیہ سینکوں نے جو پاکستان پر سینک اسٹرائک کیا، ان کے بنکروں کو اڑایا، اللہ نے چاہا کہ نہیں؟ دیکھیے اصل میں ایسا ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ اللہ نے مجھے دکھانا مت یار، مجھے مت دکھاؤ، میں دنیا کو دکھا رہا ہوں، مجھے مت دکھاؤ۔ میں جو بول رہا ہوں اس کا جواب ہے تو دو جواب۔ تو اللہ کے چاہے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، اللہ اگر نہ چاہتا نہ ہوتا۔ میرے بھائی، میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ نے چاہا تب نہ پاکستان میں بھارت دوارا سینک اسٹرائک ہوا۔ اللہ نے چاہا ضرور، لیکن اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ کس کا حکم نہیں دیا؟ کہ ظلم کرنے کا۔ یہ اور پاکستان جو اتنے دن سے ظلم کرنے، پاکستان کو حکم دیا ظلم کرنے کا؟ نہیں، کسی کو نہیں دیا، مسلمانوں کو دیا۔ میں یہاں اللہ کی چاہ اور ظلم سے کوئی تو سمپرک نہیں بیٹھ رہا ہے۔ اللہ کی چاہ ہے یا نہیں؟ اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ بھی کہہ رہے ہیں اور قرآن بھی کہہ رہا ہے ماشاء اللہ کان لم یشاء لم یکن۔ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ تو اگر وہ چاہتا ہے تو پاکستان یہ اچھا ہے، سکسر ماروں میں اور پوائنٹس ملے آپ کو، کیا بات ہے بھائی۔ اگر وہ چاہتا ہے تو پاکستان میں جو بھارت دوارا سینک اسٹرائک ہوا، جو بنکروں کو اڑایا گیا، یہ اللہ نے چاہا؟ یس اور نو وہ بولیے۔ یہ اللہ نے جو تقدیری فیصلے کر رکھے ہیں اس کے مطابق ہوا ہے۔ پھر بھائی آپ پھر تقدیر کو کیوں گھسیٹ رہے؟ پھر دوسرے لفڑے میں پڑ جائیں گے آپ۔ سوالوں کے گھیرے میں ہے اللہ۔ اللہ سوالوں کے گھیرے میں ہے میرے بھائی۔ تقدیر نے اگر تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا تو بھات کا جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ تھالی سے منہ تک لانا کیوں پڑ رہا ہے؟ وہ تو منہ میں اپنے آپ آنا چاہیے تھا۔ منہ میں اپنے آپ کیوں آئے گا؟ اللہ نے یہی تو اللہ نہیں جانتا، پرشارتھ کیے بنا نہیں ملتا ہے۔ اللہ نے تقدیر بنائی، قلم بنایا پہلے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ جو قلم بنایا، تقدیر لکھا نا جی، تو اللہ نے قلم کس چیز سے بنائی؟ قلم وہ اللہ کا قلم اللہ جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے تو آپ کیا جانتے ہیں؟ اللہ جانتے ہیں بہت، اللہ قلیل، بہت تھوڑا ہم کو علم ملا تھا، ہم کیا جانیں گے بھائی؟ میں بول بھائی اگر لائن سے بات کریں گے تو بات بنے گی، نہیں تو پھر فون کاٹنا پڑے گا میرے کو۔ اگر ہم آہستہ آہستہ بات کریں گے نا تو منزل جو ہے وہ ایک ہی ہے، ادیتیہ ہے میرے بھائی۔ صحیح اور سچا راستہ جو ہے وہ ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ محبوب بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ نے جو عقل ہم کو دی ہے اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے برا کرنا تو اللہ اسے برائی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔
इंसान अगर चाहता है एहसान करना, ऐसा अल्लाह उसे एहसान करने की तौफीक देता है। यही चीज को तो आप नहीं जान रहे। अगर अल्लाह जो चाहता है वही होता है, तो इसका मतलब मैं मुर्तिद बन गया हूँ, अल्लाह ने चाहा? अल्लाह ने नहीं चाहा, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं आपके चाहा। ज़हन पे अरे शैतान ने यार, बसता अरे हासिल कर लिया। यार, यही तो पागलपन है ना, यही तो मूर्खता है, जहालत है ये। अगर शायद मैं किसी हिंदू को मुसलमान बनाता हूँ तो अल्लाह चाहा, और कोई मुसलमान मुर्तिद बन गया तो अल्लाह ने नहीं चाहा। ये उल्लूपना का काम नहीं है। नहीं, तो अल्लाह ने जो हमें और आपको बताया है कि भाई मेरा जो जो गुमराह करने वाला कौन है? गुमराह कौन करता है? जी गुमराह कौन करता है? गुमराह इंसान का नफ्स करता है। नहीं, जब वो अब गुमराह करने वाला भी अल्लाह है और रास्ता दिखाने वाला भी अल्लाह है। बेशक हाँ, तो बेशक जब गुमराह करने वाला अल्लाह है तो फिर मुझसे क्यों कह रहे हैं ये सब? या मैं अल्लाह से कहिए कि अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह खुदा रास्ता बनाता है। हिदायत दे, अल्लाह सीधा रास्ता पर ले जाए। जब वो कर सकता है, चला सकता है, ले जा सकता है, तो ये है। जी जब अल्लाह हिदायत भी देता है और अल्लाह गुमराह करता है, तो गुमराह करने वाला अगर अल्लाह है तो इसमें जी। मेरी क्या गलती है? बिल्कुल बिल्कुल, जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको चाहता है गुमराह करता है, वो उसकी हाँ। मर्जी है। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि मर्जी तो ये पागलपन वाला का पागल होगा क्या? उसके हिसाब का तो पारावार नहीं है, वो हिसाब वाला है। तो ये बेहिसाब वाला काम कैसे हो जाएगा अल्लाह का? अल्लाह का काम इंसान के, अल्लाह ने जो इंसान बनाया है, हमको और आपको इंसान बनाया है। अब हमको और आपको इंसान बनाने के बाद हमें आपसे मुतालबा किया है कि कौन तुम में मेरा फर्माबरदार है। वल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुमिन, वही तो है जिसने तुमको बनाया है। मैं बोला और फिर तुम बातें ऐसे मैं हो कि बोला था इंकार ना करते कि हो, बातें ऐसे मानते हो। परस्पर विरोधी बातें हैं, एक को पकड़ेंगे दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। मैं पूछ रहा हूँ कि गुमराह करता है हाँ या ना, ये बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ही गुमराह करता। एक मिनट वही रुकिए। फिर जब अल्लाह गुमराह करता है तो इंसान अपने आप गुमराह नहीं हो सकता? इंसान अपने आप गुमराह उसके जैसे उसके चाहत होती है वैसा अल्लाह उसके साथ कर देता है। तो ये एक छोटी सामान्य बात को नहीं पकड़ रहे। आपके घर में आपका बच्चा कोई गलत काम करेगा तो आप उसको रोकेंगे या गलती करने देंगे? और हम उसको रोकेंगे, तो लेकिन रोकेंगे। अगर वो उसकी खलकत में हिदायत होगी तो वो हिदायत याफ्ता होगा। वही तो मैं बोल, अरे अल्लाह वो हजरत नूह ने अपने लड़के को नहीं बचा पाया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? नूह अलैहिस्सलाम अपने लड़के को नहीं बचा पाए। तो ये मैं इसीलिए अगर इस पर मेरे साथ बहस करना है, डिबेट करना है, तो खुली चुनौती है भाई। नहीं तो उसमें तो यही है ना कि जैसे अल्लाह ने किसी को गुमराह कर दिया, अल्लाह ने अल्लाह पर दोष लगे। मेरे बड़े भाई, ये अल्लाह पर अगर हम बोलेंगे अल्लाह किसी को गुमराह कर दिया तो अल्लाह पर दोष लगे, क्योंकि उसका काम सीधा रास्ता, उसको काम गलत रास्ते पे चलाना नहीं है, वो सीधा रास्ता दिखाता है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, क्या कहते हैं आप जी? तो जब वो सीधा रास्ता दिखाने वाला है, वो किसी को, एक आदमी अगर ये दो तरीके का काम करे तो उसको दोगला बोला जाएगा कि नहीं? अगर हम सीधा रास्ता न चलना चाहें तो हमें टेढ़े रास्ते पे चला देगा अल्लाह। नहीं, तो भाई सीधा रास्ता ना चलना चाहे तो उसका काम है। देखिए, भय लज्जा और शंका उत्पन्न, हम जब गलत काम करते हैं, किसी के जेब में हाथ देते हैं, किसी की लड़की को छेड़ते हैं, तो वो भय लज्जा शंका वही तो उत्पन्न कराता है जी। तो जब वो हमको बचाने के लिए करता है कि बोलता है चल जल लड़की छेड़ तू, है क्या करता है बताइए? बचाने की कोशिश करता है। इसीलिए ये जान लीजिए, दो टुक में मैं बता रहा हूँ, कायनात का बनाने वाला अल्लाह नहीं है। अल्लाह जानता भी नहीं है कि कायनात बना की चीज से कैसी बनाई जाती है। अल्लाह ईश्वर वाला जानता है। आपके जहन को शैतान ने अब घुमाया हुआ। बोल रहा हूँ, अल्लाह फिर शैतान तो अल्लाह को चुनौती दिया है, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से मैं गुमराह करूंगा, और अल्लाह ने उसको आग से ऐसा बनाया कि वो इतना शक्तिशाली है, वो अल्लाह को चैलेंज कर रहा है।
चैलेंज नहीं कर रहा है, अल्लाह को चैलेंज कोई नहीं कर सकता है। कैसा नहीं कर अल्लाह सकता? करके दिखा दिया वो अल्लाह ने अल्लाह को झूठा साबित कर दिया। अल्लाह ने बोला था वो हवा को, ये आदम को फल मत खाना, उसको भी नहीं रोक पाए वो शैतान ने। अल्लाह ने कहा खाओगे मर जाओगे, शैतान ने उसको जिला करके दिखा दिया। और अल्लाह ने वो शैतान ने साफ कहा, उंगली नचा करके उसके दाएं से बाएं से आगे से पीछे से मैं गुमराह करूंगा जो तेरा सीधा रास्ता पर होगा। तो अल्लाह ने ये भी तो कहा, अरे आदम अल्लाह के रास्ते, आदम अल्लाह के रास्ते पे थे या नहीं मेरे हुजूर बताओ जरा। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रास्ते पे थे, और अगर जो रास्ते पे रहते होते तो फिर वो फल को कैसे खाते? जो आदम के बच्चे अल्लाह के रास्ते पे रहेंगे और उन्हें शैतान बच्चे को नहीं, छोड़ो, बाप को पकड़ो ना, बाप को कैसा खिला दिया शैतान ने? तो फिर बाप ने माफी भी तो मांग ली फौरन। और माफी मांगे, माफी हो वो अलग बात, फिर दूसरा प्रसंग हो जाएगा। मैं कह रहा कि अल्लाह जो चाहता है सो करता है। अल्लाह चाह करके भी नहीं कर पाए, शैतान से आदम के सामने सीधा नहीं करा पाए, और फिर आदम को मना करने के बाद भी उस फल को खाने से रोक नहीं पाए, तो फिर क्या अल्लाह क्या जो चाहता है सो करता है? बता रहे हैं आप। अल्लाह ने बहुत सारी मखलूकात बनाई है, इसको समझना पड़ेगा। मैं नहीं जानता हूँ क्या बहुत सारे मखलूकात बनाए, कि मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह जानता भी नहीं है मखलूकात बनाया कैसा जाता है। मैं बोला ना, कल मैं बोला था ना कि दांत खुल के दांत जो मुंह में है वो हाथ में आ जाएंगे। अल्लाह सब कुछ जानता है, अल्लाह और उसने एक निजाम बनाया है। भाई मैं फिर वही कल वाली बात दोहरा रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह जो चाहता सो करता है ना। अब आप बता भी नहीं पा रहे हैं, अल्लाह जो चाहता सो करता है। जो मैं पूछा वो नहीं बता पा रहे। क्या अल्लाह दूसरा अल्लाह भी बना सकता है? माशा अल्लाह कान, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। वलम यशा लम यकुन, मैं तो पहले ही बोला माशा अल्लाह कान लम यशा लम यकुन, मैं पहले ही बोल दिया था। मैं बता तो वही रहा हूँ कि अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकता है क्या? अल्लाह दूसरा, ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात? तो अल्लाह जो चाहता सो कर कैसे सकता है? अल्लाह जो चाहता, अल्लाह तो आदम को सीधा नहीं करा पाए, आदम के सामने सीधा नहीं करा पाए इब्लिस को। अल्लाह ने अहकाम दिए हैं, जो बात माने। इंडिया क्या है? ये इंडिया दुनिया को कुछ देने का भाव। अल्लाह ने अहकाम दिए हैं, जो बात मानेंगे उन्हें इज्जत मिलेगी, जो नहीं मानेंगे वो जलील किए जाएंगे। कैसा है? ऐसा नहीं है। वाह तो इज्जत मंतशा, वाह तो जिल्लु मंतशा, वो जिसको चाहता है उसको देता है इज्जत, जिसको चाहता है बेइज्जत करता है। वो एक अच्छा आदमी का भी काम नहीं है। एक अच्छा आदमी भी किसी को बेइज्जत नहीं कर सकता। वो काम अल्लाह कर रहा है। नहीं अल्लाह बिल्कुल। मेरे को फोन क्यों मिला है ये बताइए। भाई महबूब